Good morning students. Today we will be starting up with chapter number 4, metals and non-metals. Okay, it's the second part. In the previous class we have discussed about the physical properties of metals. ठीक है, physical properties की हमने बात की थी जिसके अंदर we have discussed that metals जो होते हैं they are solid. Exception was the mercury. Then we have talked that metals are hard except lithium, potassium and sodium. Then they are lustrous, that is they have the shiny appearance. Along with this we have discussed that they are malleable, that is they can be beaten into thin sheet. Then we have we have came to know that they are ductile, that is they can be drawn into thin wires. And also we have discussed that metals जो होते हैं they are good conductors of electricity. Okay, then they are sonorous, that is they produce sound. So all these things we have discussed in the previous class. Now today we will be starting up with the physical properties of non-metal. ठीक है, so metals क्या थे? They were solid. But non-metals can be solid, they can either be solid or liquid or they could be in the gaseous state. ठीक है, then non-metals they are soft except diamond. Diamond is the only non-metal which is hard and it is the only non-metal which has the shiny appearance, that is which shows the property of luster. Okay, then they are not malleable, that is they are brittle. ये क्या होते हैं? They are brittle, that is they can break down easily. They are not ductile, cannot be drawn into thin wires, and non-metals they have low melting point and they are the poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity, but there is the only non-metal which is the graphite. Graphite is the only non-metal जो कि क्या है? Which is the good conductor of electricity. ठीक है, and they are not sonorous, that is they do not produce sound. Okay, coming on to the chemical properties of metals. Metals की हम अब बात करेंगे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है. Okay, we can check on the example over here. Copper is a metal and when it react with oxygen it leads to the formation of copper oxide. Similarly aluminium जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है it forms the aluminium oxide. ठीक है, one most common example which we see in our day to day life is of iron. आयरन एक मेटल है, वी ऑल नो दैट. ठीक है, नाउ व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड. इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज रस्ट. रस्ट क्या होती है? जो जंग लग जाती है आयरन की चीजों पर. क्यों लगती है? बिकॉज इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सो दिस इज हाउ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. ओके, नाउ विल चेक ऑन दी मेटल का रिएक्शन विथ वाटर. वाटर के साथ मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. Example could be sodium when react with water
lead to the formation of sodium hydroxide and hydrogen is the byproduct. Similarly, potassium with water leads to the formation of potassium hydroxide and hydrogen is the byproduct. Okay, so these are the examples in which metal is reacting with water. Moving further, now we'll see how metals react with acid. ठीक है, जब भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, metals when react with acid, it leads to the formation of salt. ठीक है, so these are the example. Magnesium is a metal reacting with acid. Which acid? Hydrochloric acid, HCl, forming magnesium chloride. Okay, so these are the metal reacting with acid, and all these are what? These are the salt. The most common example, if we take sodium as the metal, ठीक है, और इसको मैंने जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, it leads to the formation of sodium chloride. And what is sodium chloride, children? It is the common salt. समझ में आया कि how metal react with acid and what they form? Okay. Moving further, now that was the chemical properties of metal. अभी हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या मतलब होता है? द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इज ऑन द टॉप एंड देन लेस, और सबसे नीचे जो है इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, नाउ यू शुड नो ये रिएक्टिविटी सीरीज, बिकॉज इसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी फर्दर टॉपिक. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए. ठीक है, तो पोटेशियम इस लिस्ट के अंदर इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. देन सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and the gold is least reactive metal. ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा मेटल है? गोल्ड. एंड द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल इज व्हाट? पोटेशियम. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. नाउ on the basis of reactivity series we will be learning about the displacement reaction. कौन सी reaction? Okay, hold on. Okay, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जब हमें पता होती है, हो गई है, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा होती क्या है? ये इसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वो डिस्प्लेस कर देता है द लेस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट. वी विल सी द एग्जाम्पल. बट होता क्या है? जो कम रिएक्टिव और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, इट डिस्प्लेसेस दी, या मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है. उसकी जगह पे क्या आ जाता है? लेस रिएक्टिव की जगह जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, नाउ वी विल सी द एग्जांपल. मैग्नीशियम इज अ मेटल, और जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है? इट इज अ मेटल. ठीक है, तो एक ये क्या है? इट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन. तो मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. अब ये मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बन गया? अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर.
तो इसने क्या किया, इट हैज रिप्लेस, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, तो कॉपर की जगह आ गया मैग्नीशियम एंड SO4 एज इट इज, और जो कॉपर है इट हैज बीन फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एक कॉपर हमें क्या प्योर फॉर्म में कॉपर मिल गया, और सॉल्ट किसका बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे कि मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव हैज रिप्लेस्ड द कॉपर, ठीक है, फॉर्मिंग मैग्नीशियम सल्फेट एंड वी गॉट कॉपर इन अ प्योर फॉर्म। सिमिलरली अगर हम जिंक की बात करते हैं, if you again check on the reactivity series, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो अगेन व्हाट इट हैज डन, इट हैज रिप्लेस्ड द कॉपर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज इन द प्योर फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने क्या बात की थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ इट वर्क। नाउ विल चेक ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, नॉन मेटल। नाउ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म इट्स डाइऑक्साइड। कैसे बनेगा, सल्फर को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ रिलेटेड टू दिस देयर इज वन एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर क्या किया है कि दे हैव टेकन द सल्फर पाउडर, ठीक है, सल्फर पाउडर इन अ मेटालिक कैप, उसके बाद दे हैव हीटेड दैट मेटालिक कैप कंटेनिंग द सल्फर पाउडर। ठीक है, एंड वंस, एक बार जब वो मेटालिक कैप अच्छे से गर्म हो जाती है, देन वी प्लेस दैट मेटालिक कैप इनटू अ जार, एयर टाइट जार। ठीक है, लीव इट एज सच फॉर सम टाइम। ठीक है, नाउ after some time you will quickly open that lid and pour some water, and then again you will replace the lid or you will put on that lid, cover that jar again. ठीक है, now after 15 to 20 minutes, if you test that water with red litmus paper or blue litmus paper, what observations we will record? We will observe that the blue litmus, जो blue litmus paper है, it has turned red. ठीक है, वो रेड क्यों टर्न हो गया है, बिकॉज उसके अंदर देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और क्योंकि ये एसिड है तो इट विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इससे हमें कंफर्म हो गया कि अंदर जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसको जब हमने वाटर के साथ डाइल्यूट किया वी हैव फॉर्म दी सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, नाउ रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ, एक सेकेंड, non-metals do not react with water, ठीक है, but they are very reactive in air। मतलब फॉस्फोरस को अगर आप डायरेक्टली एयर की कांटेक्ट में लाते हो तो देयर में बी अ ह्यूज ब्लास्ट। ठीक है, बट क्योंकि फॉस्फोरस बहुत इजीली फायर को कैच कर लेता है। नाउ नॉन मेटल्स क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो what we do, we generally store non-metals in the water।
so as to prevent phosphorus to come in contact with the atmospheric oxygen. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कोई नॉन मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आए, तो हम नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ रिएक्शन विथ एसिड नॉन मेटल्स, मार्क 2 पॉइंट्स दैट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. एंड मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस. समझ में आया? मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है Al एंड जिंक. समझ में आया? तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते. सो यू मस्ट नो दीज 2 पॉइंट्स वेरी केयरफुली. नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू द टॉपिक विच हैज बीन डिस्कस्ड. ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.